Hello students, welcome to Physics Coach. मेरा नाम अंकित. Let us start today's lecture of very important questions of electricity and mechanics we will solve. So in this question we will first read the question properly. Question is saying like two wires of equal length, one of copper and another is of manganese. Clear? Which wire is thicker? So first read the question properly. One wire is of copper, another is of manganese. So which one is thicker? So wire, this is a wire, cross section of wire, this is the length of wire, and this is L, this is the cross section of wire, this is A. So always remember one thing, higher the cross section area, जितना ज़्यादा cross section area होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, thickness. ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से लेके आज तक, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका thickness. More the thickness, more is the cross section area, and I can tell you also from this. इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं तो देखिए ध्यान से, ये वायर है, ये बीच में मान लीजिए एरिया, ये है मान लीजिए यहाँ मटेरियल है आपका, पूरा मटेरियल यहाँ है, बीच में कैविटी है, ये कैविटी है, खाली जगह है, ठीक है. दिस इज आवर एरिया. तो अगर आप खुद देखिए, और ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है आपका इतना हिस्सा, दिस इज थिकनेस. So higher is the area of cross section, higher is the thickness. If you increase the area of cross section, for example, this is inner radius, and you increase the area. Now you increase the area. So area ये हो गया आपका. You increase the area. So you can see that you increase the thickness. Thickness बढ़ गया. This is thickness. So higher the area of cross section, higher the thickness. This concept you must remember because it's very important. अगर आपको ये concept नहीं पता होगा then you can't imagine this question. As we know that the resistivity and the resistance formula R is equal to rho L upon A. Since as per the question two wires of equal length, this is same, we can know from this expression that resistance of copper wire is equal to resistance of magnet. So can I write in this way, rho copper upon area copper, rho manganese divided by area of manganese. As we know that the resistivity of manganese wire is more than the resistivity of copper wire. Rho manganese wire is greater than rho copper wire. Hence क्या होगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको ऊपर ले जाइए, एरिया ऑफ मैग्नेटिक वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नेट डिवाइड बाई रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर. सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी. सिंस रो mn is greater than rho cu, means resistivity is greater than resistivity of magnetic wire is greater than resistivity of copper wire. Hence area of magnetic wire is greater than area of copper wire, and hence thickness of magnetic wire is greater than thickness of copper wire. This is a question which is asked. I hope this is clear. Moving to the next question. In this question, a 10-volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200-volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in the figure. You need to find the value of current. So it's very easy question. You can apply the Kirchhoff law in this loop. यहाँ से चलिए A, B, C, D. In the Kirchhoff loop A, B, C, D, A, you can apply Kirchhoff KVL. KVL अप्लाई कर दीजिए. A से चलिए करंट की डायरेक्शन में, BC -10 वोल्ट, फिर यहाँ पर आए C से D. अब देखो लो से हाई पास कर रहे हैं, सो प्लस 200 वोल्ट, फिर क्या होगा, ऐसे पास कर रहे हैं हाई से लो रेजिस्टेंस को, तो -I इंटू 38 ओम इज इक्वल टू 0. बिकॉज जहां से चले आप वहीं आ गए, ए से चले और ए पर ही आ गए, तो नेट सम क्या होगा पोटेंशियल का, दैट विल बी 0. तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपना करंट कितना आएगा 190 सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है,
190 upon 38. So 19 tens are 19 twos are. So how much you will get? 5 ampere. So this is the answer. बहुत आसान है. KVL अगर आपको नहीं पता, you can ask me in the comment section. Moving to the next question, a wire of resistance 20 ohm is gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across 4-volt battery. You need to find the current drawn from the battery. So first of all, as we know the concept, if you stretch a wire, then its resistance, new resistance will be proportional to the L square. अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के स्क्वायर के डबल हो जाता है. मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर. व्हेन, कब होगा ये? व्हेन स्ट्रेचिंग हैपन, व्हेन वी स्ट्रेच अ वायर, व्हेन स्ट्रेचिंग हैपन, स्ट्रेच. क्लियर? सो वी कैन राइट इन दिस वे, R upon R dash initial length divided by after stretching. So as per the question, as it is saying that initially the resistance is, that is R L dash upon L whole square. So you can tell me, since as per the question it is saying that length will become double, L dash 2L हो गया आपका. So how much will be the R dash? R dash कितना होगा देख के बताइए. 2 2s are 4, 4 into R, और R का वैल्यू पता है आपको कितना हो गया? 24s are 80. So 80 ohm resistance it will be after stretching. Now as per the question it is saying that we have cut this wire. First of all you will stretch a wire. After that you will cut it into two equal part. So this is 80 ohm resistance. ये जो आपने 80 ohm निकाला है रेजिस्टेंस, ये कितना लेंथ का था? इसकी कुछ भी लेंथ रही होगी, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 80 ohm. क्लियर बच्चों? नाउ यू कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी हाफ, बिकॉज पूरी लेंथ का 80 ohm है तो हाफ लेंथ का क्या होगा? आधा हो जाएगा. And you connected this across a 4-volt battery. This is 4-volt battery and it will be half, 40 ohm, 40 ohm. Now question is asking what is the current. So I is equal to effective resistance, इन दोनों का निकाल लीजिए equivalent resistance, अपॉन कितना होगा? R is equal to V upon I होता है. I is equal to क्या होगा? V upon R. तो इसका इनवर्स ले लीजिए, फॉर्मूला लगा दिए. R is equal to V अपॉन I. I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R. I तो निकालना है आपको. तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा? 40 40 40 क्या होगा बताइए? कुछ लोग तो बिना सॉल्व कर ही बता देते हैं इसको, लेकिन मैं तो आपको सॉल्व करके बताऊंगा बिकॉज इट्स माय प्राइम इंपॉर्टेंस. लाइक कोई भी चीज स्किप नहीं करना, ठीक है? तो आप मुझे बताइए 40 ओम का पैरेलल में क्या होगा? देख के बताइए. R डैश 40 into 40 divided by 40 plus 40 80. This will be 20 ohm. क्या मिला आपको? How much? 20 ohm. समझ आ गया? अब करंट पूछा है आपसे, तो I is equal to क्या होगा? V upon R. ये तो होगा 4 20 यानी कितना हो गया? 5 यानी कि 0.2 एम्पियर. राइटिंग पे मत जाना, मेरी फीलिंग पे जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं, लेकिन आपको मैंने इजी वे में बता दिया. आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर. एक रेजिस्टेंस है और ये आपका बैटरी है जिसका EMF E है, और दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R. दिस इज कैपिटल R. दिस इज EMF ऑफ बैटरी. कुछ नहीं करना, पहले आप किर्चॉफ लॉ लगाएंगे. एक चल लीजिए लूप में ABCD. तो यहां से आपने किर्चॉफ लॉ लगाया, A से B, B से C, C से D, D से A गए. तो देखिए पहले क्या, आप यहां से चल रहे हैं, D से A गए, D A B से C गए, फिर वापस D पर आ गए. तो लो से हाई E माइनस I इंटू R
माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी करंट की वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बच्चों यहाँ से ईएमएफ का वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टर 3 ओम दिया है क्वेश्चन में, और आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, आई का वैल्यू 0.5 दिया है। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं इजिली, 10 अपॉन 3 प्लस आर कितना हो जाएगा 10 अपॉन 0.5, यहाँ से 3 प्लस आर हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, तो 5 2 10 20, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस 17 ओम। पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है बच्चों कि फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, व्हेन यू इंक्लूड द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपको E दिया हुआ है, R आपने निकाल ही लिया, I दिया हुआ है, यू कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, अप्रॉक्स 8.5 वोल्ट आएगा, बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज हमेशा EMF से कम ही रहता है। और मैंने आंसर बता दिया, एक बार आप ट्राई करें ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। A bike accelerates uniformly from rest to speed of 7.10 मीटर पर सेकेंड ओवर डिस्टेंस। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन में लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फाइनली इसकी v दिया हुआ है, फाइनल v दिया हुआ है 7.10, आप लगा देंगे, u 0 हो गया, और आपसे a पूछा है, a निकाल लेंगे, s दिया हुआ है आपको 35.4, यू कैन इजिली कैलकुलेट। इसको ट्राई करिएगा एक बार, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सॉल्व, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग एट द स्पीड एंड इन दैट डायरेक्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ साफ बोल रहा है कि आपको इसी स्पीड से मूव कराना है ऑब्जेक्ट को, मींस एक्सेलरेशन 0 हो गया, इट मींस नेट फोर्स इज 0, कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose you were in a space in a weightless environment, would it require a force to set an object in motion? बताइए, does it require any बताइए, would it require? Yes, because I am telling you, you can see that in space ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और मास में क्या होगा, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, अगर मास होगा तो इनर्शिया भी होगा। इनर्शिया क्या होता है, is a property of an object to resist its change its state of motion or rest। मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा, इनर्शिया होगा तो उसके पास अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को रेसिस्ट करने का टेंडेंसी भी होगा। इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में चल रहा है तो वो चलता रहेगा, कोई रुका है तो रुका रहेगा। अगर आपको उसको मोशन में लाना है देन यू नीड टू रिक्वायर सर्टेन फोर्स। तो इट क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड इट रिक्वायर अ फोर्स टू सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन? यस। क्लियर, बहुत आसान है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसको ट्राई करना घर पे, मैं आपको समझा देता हूं। ए कार possesses 20,000 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम का वैल्यू दिया है p इज इक्वल टू 20,000। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कार न्यू मोमेंटम। तो बच्चों p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, न्यू मोमेंटम पूछा, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो मोमेंटम ट्रिपल हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज द मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। समझ आ गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने यहाँ पे, आप इसको वेक्टर में भी ले सकते हैं, p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर आप वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो इसका मोमेंटम भी ट्रिपल हो जाएगा, मास को डबल करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होगा, मोमेंटम फर्क पड़ेगा, तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी को डबल करेंगे, मास को डबल करेंगे, तब भी मोमेंटम क्या होगा। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई एट योर होम। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आता है प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and like. Thanks a lot. Thank you everyone. If you have any comment, any question, you can ask me anytime on this number or join our group. Once again, thank you so much. Please share, please like, subscribe. Thanks everyone. Thanks a lot.